This part is a part of the solutions which is being discussed in the thermodynamics. It's a discussion of the colligative properties. You might be aware of the colligative properties. You might be aware of the Raoult's law, ideal and the non-ideal solutions. From my side, let us have a short look over these parts. What is the Raoult's law? Raoult's law is related with the boiling of the liquid or vapor pressure of the liquid. Any solvent if there, then it is having particular vapor pressure, and whenever the solvent is heated so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, that particular temperature becomes its boiling point. Whenever a non-volatile solute is added to the solvent, then non-volatile solute will not have the vapor pressure, but solvent vapor pressure decreases. It decreases by amount, by to the extent to how much non-volatile solute has been added to that particular solvent. More is the addition of the non-volatile solute, more reduction in the vapor pressure is there, or reduction in the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute that is being added to the solvent. There is a relation for particular liquid that vapor pressure of that liquid is proportional to its mole fraction, and vapor pressure of the liquid or solvent is equal to the mole fraction multiplied by vapor pressure of pure solvent. अगर solution है तो solution में non volatile solute ऐड होगा, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, लेकिन जब उसमें सोल्यूट नहीं है, केवल सॉल्वेंट है, देन इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो दीज आर राउट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द नंबर. Number means what? A solution contains 100 number of the ions. A solution contains 20 number of the ions. The colligative property will depend upon the number of the ions which are present in the solution. So the property which is dependent upon the number of the ions or number of the molecules which are present in the solution, or which depend upon numbers, that is meant as the colligative property. Whenever a non-volatile solute is added to a solvent, then its vapor pressure becomes less. So here you are looking a graph. This side it is variation of vapor pressure in the Pascal. This is the variation of temperature. It is T0 and T. So the upper line it shows the line of the solvent. तो ये सारी की सारी liquid line है. तो that is the boiling point of the solvent, and that is designated as T0. And lower line it is vapor pressure becomes less when you are adding non-volatile solute. Lower line is representing the solution, so this line is moving just like this way, and this becomes its boiling point, because at this point its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. So you see here there is a slight difference between these two temperatures. The difference between these two temperatures, that is termed as the elevation in the boiling point. That is termed as the elevation in the boiling point. Because whenever non-volatile solute is added to the solvent, then its boiling point increases by a certain degree. That is increase in its boiling point. सिंपल सी बात है कि अगर प्योर वाटर है उसको बॉईल करते हो तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें आप साल्ट डाल देते हो या उसमें शुगर डाल देते हो, तो साल्ट और शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, तो उनके एडिशन से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. वेदर इट इज नोटिसेबल इन द डेली लाइफ और नॉट, इट इज नॉट नोटिसेबल इन द डेली लाइफ कि हाँ जी आपने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया और उससे आप ये चेक करने लगो कि हाँ जी इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा चेंज होता है. उसको आप चेक कर सकते हो कब? जब आप उसमें एक्सेस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे. ऑब्वियसली देयर विल बी ए वेरिएशन इन द टाइम फॉर द बॉइलिंग ऑफ द वाटर विदाउट शुगर एंड विद शुगर, बट इट शुड बी इन एक्सेस अमाउंट. लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसमें सोल्यूट ऐड करते हो
तो फ्रैक्शनल चेंज जो है उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो वो आता है. So this is the elevation in the boiling point. We will discuss it as an application of the Clausius-Clapeyron equation. So sidewise, see here, this is the Clausius-Clapeyron equation. Logarithm of the two pressures, one is more, another is the lesser one, is equal to delta H divided by R, difference between the two temperature T2 minus T1 corresponding to P2 and P1, and multiplication of these two temperature T1 into T2. So that can be written as, it is ln P0 upon P is equal to delta H vaporization upon R, T minus T naught and TT naught. तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. जो 2 वाली टर्म्स इसको P नॉट लिखा है, इसको मैंने P लिख दिया है, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है. सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. क्योंकि लिक्विड को आप बॉयल कर रहे हैं तो लिक्विड बॉयल होकर किसमें चेंज होगा? वेपर में. सो हियर इज ए phase equilibria, and that equilibria is existing between the liquid and the vapors. So that is the change of this, or shift of this, or you can say change in the Clausius-Clapeyron equation in terms of P naught and P, where P naught is the pressure of the pure solvent, P is the pressure of solution, डेल्टा एच वेपोराइजेशन. ठीक है, यहां पर T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, T नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड रिमेनिंग फिगर्स दे आर हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग. सो फ्रॉम हियर ln P0 upon P that is equal to delta H vaporization, this is delta TB, how much change in the boiling point is there, divided by T naught square. Why T naught square it is written? Because there is a very less difference between these two temperatures. कितना डिफरेंस हो सकता है? मैंने अभी डिस्कस किया था कि कम सोल्यूट ऐड किया हो तो बहुत कम डिफरेंस होगा. फॉर एग्जांपल वाटर 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा है, अगर आप उसमें 1 ग्राम के करीब जो है वो शुगर या सॉल्ट डाल देते हैं, हार्डली इस टेम्परेचर विल बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज बाय 100.5 या 100.2 या 100.3 इतने डिग्री से ये चेंज होगा. तो 0.02, 03, 04 इतने डिग्री की जो वो चेंज उसमें आएगी. तो ये इतनी कम चेंज होती है कि नोटिसेबल नहीं होती है. तो दोनों टेम्परेचर जो उसने इक्विवेलेंट ले लिए हैं, T एंड T नॉट, सो दैट इज व्हाई T नॉट स्क्वायर इट इज बीइंग टेकन. लेट अस सी नेक्स्ट हियर. सो ln P नॉट अपॉन P दैट इज इक्वल टू माइनस ln P अपॉन P नॉट. इसको मैंने इनवर्स कर दिया तो इनवर्स के साथ माइनस साइन आ जाएगा. That is equal to minus ln, and that is being splitted as 1 minus P naught P minus P upon P naught. अगर इसको आप हल करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास P upon P naught आएगा. देखो यहां से P naught इधर गया, P naught कैंसिल विद P naught प्लस P upon P naught बचेगा. तो ये केवल मैनिपुलेशन है, इसको चेंज किया है थोड़ा सा. देन सी हियर दिस फैक्टर, दिस इज बीइंग शोन हियर. That factor is the relative lowering in the vapor pressure. That factor is the relative lowering in the vapor pressure. अभी डिस्कस कर रहे थे relative lowering in vapor pressure जो है that is equal to x2. यहां पर P नॉट आएगा, वैसे ये 0 लगनी है. इट इज इन कंपेरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट. P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट दैट इज इक्वल टू x2. तो ये जो फैक्टर है ऊपर वाला फैक्टर, तो वो x2 के इक्वल आ जाएगा. सो दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ln1 माइनस x2. फर्दर टेकिंग द हेल्प ऑफ द सिंपल मैथमेटिक्स, ln1 माइनस x2 कैन बी रिटन एज माइनस x2. ln1 minus x2 is written as x2 provided the terms which are being considered they are the fractional one. अगर फ्रैक्शनल टर्म्स हैं तो उनको इस तरह से जो है वो लॉग में लिखा जा सकता है. इट मीन्स ln P नॉट अपॉन P दैट बिकम्स इक्वल टू x2 is equal to delta H vaporization divided by R. It is delta TB divided by T naught square. So further x2 we know that is the number of moles of second component divided by total number of moles.
एक सोल्यूट के लिए है और एक सॉल्वेंट के लिए है. सो इट मीन्स x2 that is equal to now n2 divided by n1. Why n2 divided by n1? Since number of moles of second component, सोल्यूट बहुत कम ऐड किया है, तो आप जो उसको एडिशन से नीचे से जो वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दैट पार्ट it is being negated from here or it is erased from here. We are left with n2 divided by n1. What is n2? It is weight of the compound divided by molar weight and molar mass. It is weight of the component divided by molar mass. So that is n1, that is the n2. You further simplify it, we get the relation delta H vaporization upon R, that is equal to delta into delta TB upon T naught square, that becomes equal to W2 M2 W1 M1. यहाँ X2 था, X2 की बजाय N2 अपॉन N1 आया, N2 की बजाय जो वेट्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं. नाउ फर्दर it is delta TB from here, it becomes equal to RT naught square. It is RT naught square, this one, that R and that is T naught square, divided by delta H vaporization, that becomes down here. Then W2 M2, ये पार्ट जो अब ये आ गया, तो ये पार्ट को परे ले गए हो यहाँ पर. That becomes equal to this much, what I have taken a quantity here separate. This quantity can be taken as equal to Kb, that is the molar ebullioscopic constant or molar elevation constant. क्या बोलते हैं इसको? Ebullioscopic constant या molar elevation constant. How we can calculate it? We take W2 as equal to M2, W1 as equal to 1 gram, then whatever the quantity left, delta TB, that becomes equal to the Kv. Now substitute the value of Kv, इसके लिए आपने जो वो Kv सब्सिट्यूट कर देना है नीचे. Then delta TB becomes equal to Kv multiplied by W2 W1 upon M2. So that is the relation further written as delta TB is equal to Kv N2 upon W1, or it is the number of moles per kg of the solvent. So that can be taken as the delta TB is equal to Kv into M. ये सिंपल मैनिपुलेशन है किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की या मोल फ्रैक्शंस की. इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई हैं. चेंजेस केवल इतनी है कि आपने वो वहां से इक्वेशन लेनी है. कौन सी? जो क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन है, राइट वन दैट. तो उसके साथ जो वो आपने थोड़ी सी टर्म पी नॉट और उसकी पी थी, उसको मैंने किसमें चेंज कर दिया? I have changed that into the mole fractions. Then mole fraction is taken as N2 divided N1 plus N2, number of moles of particular component divided by total number of moles. एक number of moles कम कर दिए तो N2 divided by N1 रहा. फिर उसको weight और molecular weight के इन टर्म में लिख लीजिए. molecular weight of solvent इसमें इंक्लूड कर लेना आपने RT नॉट, ये जो एनसर्कल कर रखा ऊपर. तो इसमें ये जो वैल्यू आएगी दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू for any solvent. So that is taken as the Kb, and remaining term whatever left, that is becomes the molality. So that is the elevation in boiling point discussed as an application of Clausius-Clapeyron equation. How to notify or measure the relative molecular mass from elevation in the boiling point. So this is a practical aspect of the elevation in boiling point. How we are able to measure the elevation in boiling point? That is simple measurements. What apparatus is little bit different here. What is how this is operating? This is the particular flask, A flask. In this flask, solvent is taken. There is another tube here which is having so many tubes inside with a thermometer here. That thermometer, it is also shown sidewise here. This is also a thermometer, and this thermometer is here also. ये बाहर भी शो कर रखा है इसने, लेकिन ये थर्मामीटर यहाँ पर है. इसमें मल्टीपल ट्यूब्स है अंदर.
इसमें से यहां से सॉल्वेंट को बॉईल करते हैं तो यहां से वेपर्स जो हैं इसके वो इस ट्यूब में, अंदर वाली ट्यूब में पास होंगे। जो सॉल्वेंट बाहर ले रखा है वही सॉल्वेंट जो वो अंदर ले रखा होगा। इसमें बेकमैन थर्मामीटर यूज होता है। बेकमैन थर्मामीटर जो है वो सिंपल थर्मामीटर से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। कैसे डिफर करता है? एक तो बहुत लॉन्ग थर्मामीटर होता है, इसमें 1 डिग्री जो है वो 10 पार्ट में डिवाइड होती है। यानी आप यहां से 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 इस तरह का मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो 1/10 ऑफ ए डिग्री बेकमैन थर्मामीटर कैन मेजर, और इसको आप माइनस में भी मेजर कर सकते हैं और प्लस साइड में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बेकमैन थर्मामीटर का जो है वो फायदा होता है। तो यूजुअल थर्मामीटर इसमें जो यूटिलाइज नहीं होगा। इसमें जो है सिंपल यहां पर लिक्विड बॉईल करता है, सॉल्वेंट बॉईल होगा, और वो सॉल्वेंट जो है वो अगेन यहां पर सॉल्वेंट है उसमें पास हो जाएगा। यहां ऊपर एक आउटलेट है, आई थिंक इट मे बी विजिबल और नॉट विजिबल, दिस इज द आउटलेट। इस आउटलेट से एक्सटर्नल ट्यूब में वेपर जा सकते हैं और एक्सटर्नल ट्यूब से होते हुए यहां से वेपर जो है वो बाहर आ सकते हैं। इट मीन्स जैसे ही ये बॉईल होके यहां से वेपर्स पास करेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा, वो सीधे वेपर जो हैं वो जो सॉल्वेंट अंदर वाली ट्यूब में रखा हुआ उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे वो। तो करना बहुत सिंपल सा काम है कि यहां भी सॉल्वेंट ले लिया फ्लास्क में और अंदर भी सॉल्वेंट ले लिया। बाहर वाले को बॉईल करके अंदर वाला सॉल्वेंट जो बॉईल करना है। बॉइलिंग भी नहीं करनी है, आपने केवल टेम्परेचर रीड करना है। टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ही आप बाहर वाला सॉल्वेंट जो बॉईल होगा तो उसके वेपर्स यहां पास करेंगे तो अंदर वाले सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बेकमैन थर्मामीटर में जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर मेजर कर लेना है। सेकेंड टाइम असेंबली को इसको डीअसेंबल करना है। ये जो अंदर वाली टेस्ट इसमें ट्यूब में जो सामने लॉन्गर ट्यूब नजर आ रही है, इस ट्यूब में जो सॉल्वेंट ले रखा है, इस सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करना है और द्वारा उसी तरह से सॉल्वेंट के वेपर इसमें पास करने हैं, फिर इसको बॉईल करना है। बाहर थर्मामीटर में आपने फिर यही देखना है कि कब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जिस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर आपने जो वो नोटिफाई कर लेना है। सो स्टार्टिंग में जब सॉल्वेंट ले रखा है तब कितना टेम्परेचर आया और बाद में सोल्यूट के साथ कितना टेम्परेचर आया, उन दोनों के डिफरेंस से जो वो डेल्टा टीवी जो वो निकाली जा सकती है। सो दैट्स लैंड्सबर्गर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द delta TB, or it is the elevation in the boiling point. So by this method we are able to calculate the molar mass of the solute, क्योंकि डेल्टा TB आपके पास आ जाएगी, KV की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए नॉन होगी, कितना मास आपने डिसॉल्व किया है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि हम खुद ही हम इसमें जो वो सोल्यूट ऐड करेंगे तो पता होगा कितना वेट इसमें ऐड किया है। W1 हाउ टू डिटरमिन इट, जिस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस वक्त इसको जो है वो कूलिंग के लिए ले जाना है इस ट्यूब को। तो जैसे ही कूल करोगे तो वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंसेशन के बाद जो उसमें सॉल्यूशन होगा, बिकॉज दैट कंटेन्स द सोल्यूट, उसकी जो है डेंसिटी लेनी है और उसका वॉल्यूम मेजर करना है। डेंसिटी और वॉल्यूम से उसमें मास टोटल उसकी निकाली जा सकती है। तो मास ऑफ सोल्यूट्स उसमें से लेस कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट उसमें से आ जाएगी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट एज ए W1 यहां पर भरी जा सकती है। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फ्रॉम द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। So M2 from here it is KV upon delta TV, it is W2 divided by W1. Next one is the similar discussion. It is discussion in the depression in the freezing point. What is depression in the freezing point? जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो, एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और दूसरा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो वो डिक्रीज हो जाता है। देयर इज ए डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, देयर इज ए इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज elevation in boiling point, and decrease it is termed as depression in the freezing point. Here you are looking a graph
in which along this side pressure varies, along this side variation of temperature is there. This line is the solvent line and that line is the liquid line. ये सारी की सारी में यहां पर क्या है, लिक्विड है. ये जहां पर मैं स्टॉप हो गया, आफ्टर दैट द लाइन विच इज जस्ट लाइक दिस वे, ये जो मैंने कर्व में शो की है, दैट इज ए सॉलिड लाइन. मीन्स इफ इट इज वाटर, तो जितना भी कर्व्ड पार्ट है ये आइस के लिए आएगा, और ऊपर कर्व जो दूसरी है वो किसके लिए आएगी, दैट विल बी फॉर द सॉल्वेंट के लिए जो वो लाइन आएगी. और ये जो नीचे लाइन है, दिस इज जस्ट लाइक दिस वे, ऑल दिस लाइन इट इज ए सोल्यूशन लाइन. ये पूरी की पूरी लाइन जो वो सोल्यूशन लाइन है, और इसके बाद इसका फ्रीजिंग है यहां पर. सो आफ्टर दिस इट इज द सॉलिड लाइन. तो ये इसके आगे जो है इतना सा पोर्शन, इसमें जो वो सॉलिड पोर्शन है. सो सी हियर, दिस इज P नॉट. इट कोरोस्पॉन्ड टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन इट इज गोइंग टू फ्रीज. फ्रीज मीन्स वाटर अगर फ्रीज होने जा रहा है तो उस वक्त जो सॉलिड मीन्स आइस और जो लिक्विड, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा. बट आई एम गोइंग टू से, लिसन अगेन, जिस वक्त इक्विलिब्रियम है, किसमें, इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड फेज मीन्स आइस, इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज मीन्स वाटर, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड आइस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. दोनों जो वो आपस में इक्वल होते हैं. उसी तरह की मैनिपुलेशन इस पॉइंट पे आएगी. किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट बी पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वही आइस का वेपर प्रेशर होगा. सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वही आइस का वेपर प्रेशर होगा. तो वेपर, इसमें जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, पिछली वाली साइड है, और जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है. इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा TF, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. डायरेक्टली सिंगल क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन इसके लिए नहीं लग सकती है, क्योंकि क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन जब आप लगाओगे तो वो लगेगी सॉलिड टू लिक्विड, जबकि जितने भी राउट्स लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस लिक्विड एंड वेपर्स. क्या करते हैं, liquids and vapors. So we will take the help of two equations, one as the sublimation and one as the vaporization. उन दोनों से जो है वो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जो वो रिलेट कर सकते हैं. रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट टाइम.